Hello students, in last video I explained you GDR, ADR, IDR and today topic is sources of borrowed fund. First source is trade credit. Trade credit is a borrowed fund and that is short-term finance. Trade credit refers to an agreement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw materials, inputs, spares, parts, etc. स्टूडेंट्स ट्रेड क्रेडिट जो है वो एक एग्रीमेंट है वेयर बाय ए मैन्युफैक्चर इज़ ग्रांटेड, जहाँ पर जो एक मैन्युफैक्चर जो है वो ग्रांट क्रेडिट फ्रॉम द आपका सप्लायर से ग्रांट यानी कि टेकिंग करता है ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ क्रेडिट, इनपुट्स, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा. The suppliers allow their circumstances, their customers to pay their outstanding balance within a period, credit period. जो सप्लायर्स है वो अलाउड करता है अपने कस्टमर्स को कि जो क्रेडिट पेमेंट है वो आपका क्रेडिट पीरियड में अलाउड करने की एक पर मतलब अलाउड करता है. जनरली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज द 3 to 6 month. That is the time period of trade credit, 3 to 6 month, and thus it is a short term financing facilities. ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है यानी कि इससे आप शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स को अरेंज कर सकते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द फर्म, साइज ऑफ द फर्म, स्टेटस और क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द फर्म. जो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट है वो डिपेंड्स करता है एक तो फर्म के नेचर पर, फर्म के साइज़ पर और फर्म की क्रेडिट वर्थिनेस पर. Now, merits of trade credit. First merit is readily available. Trade credit is available without any special efforts on the part of a manufacturer or trader. स्टूडेंट्स जो ट्रेड क्रेडिट है ये बिना किसी एफर्ट्स के, स्पेशल एफर्ट्स के अरेंज हो जाता है. टू अरेंज दिस फंड्स the manufacturers have no do any extra efforts. Second is flexible. There are no rigid rules and regulations involved in trade credit. Students, in trade credits में कोई भी rigid rules and regulations नहीं है. It can be easily adjusted with the changing needs of purchase as time of payment is generally adjusted in view of past dealings. Students, it can be easily adjusted with the changing needs of purchases of raw materials at time of payment is generally adjusted in view of past dealings. मतलब पास्ट डीलिंग्स के बेस पर अपनी न्यू परचेजिंग को एडजस्ट कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट. टू अरेंज द आपका ट्रेड क्रेडिट, टू अरेंज द फंड थ्रू द आपका ट्रेड क्रेडिट, नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड. Limitations of trade credit. First limitations, first demerits, increases in prices. Sometimes the suppliers may increase the price of commodity or raw materials supplied if he is selling goods on credit. Students, sometimes may be possible the supplier increase the price of your material which are supplied on the base of credit to the आपका client. Second is legal action. In trade credit, the buyer generally issues a promissory note. In case of fails to meet his commitment, the supplier can take legal action. Students, when a manufacturer or आपका any person to collect the fund through the आपका trade credit, then that person will issue a promissory note and stating that in case of fail to pay the payment, the supplier of that goods have the full authority to take the legal action on him to cover the payment. It's clear?
Now second source of raising funds, that is borrowed fund, is public deposits. बोरोड फंड है, पब्लिक डिपॉजिट भी आपका बोरोड फंड है, एंड दैट इज मीडियम टर्म फाइनेंसिंग. पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक. स्टूडेंट्स, पब्लिक डिपॉजिट जो है वो आपका अनसिक्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट यानी कि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स है जिसके लिए इनवाइट फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स प्लेसेस एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर. एक कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए ओनली न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज को पब्लिश करती है. एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. द मेंबर हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर फंड्स, ठीक है, देन फिल द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी विद द कंपनी के अकाउंट में उस मनी को डिपॉजिट कर देता है. नाउ फीचर्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स. फर्स्ट फीचर इज अनसिक्योर्ड. कंपनीज mortgage no assessed against the public deposit raised from general public. स्टूडेंट्स, कंपनी जो है फंड्स को कलेक्ट करने के लिए किसी भी असेस्ट को, फर्म की किसी भी असेस्ट को मॉर्गेज नहीं कराती. सो दिस फंड इज अनसिक्योर्ड. नेक्स्ट इज फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल. द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली यूज्ड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. स्टूडेंट्स, जो फंड्स, जो मनी कलेक्ट की जाती है थ्रू द आपका पब्लिक डिपॉजिट, उस फंड्स को कंपनी जो है अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूटिलाइज करती है. थ्रू दो दे आर ए प्राइमरी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बट रिनेविंग दीज कैन बी यूज फॉर मीडियम टर्म आल्सो. स्टूडेंट, जबकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स है, बट इसको इन प्लेस ऑफ शॉर्ट टर्म इट कैन बी यूज फॉर मीडियम टर्म आल्सो. थर्ड इज टाइम पीरियड. पब्लिक डिपॉजिट कैन बी इन्वाइटेड बाय कंपनीज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months to 3 years. सो इट इज़ कॉल्ड मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. जो पब्लिक डिपॉजिट का टाइम पीरियड है वो आपका 6 months to 3 years तक का है. Next is simple procedure to raise. Public deposit are simple to raise. A company simply has to place an advertisement in the newspaper. Any member of the public can deposit money with the company by filling a prescribed form. कोई भी member who are interested to invest their funds in the आपका public deposit, then he can fill a prescribed form and then deposit your fund in the आपका company. The company issues a deposit receipt in return, और against the आपका deposit company issued the आपका receipt to the आपका investors, and on the reserves of receipts the terms and conditions of the deposits are printed. और जो रिसिप्ट्स दी जाती है उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रिंटेड. नेक्स्ट इज रीपेमेंट. ए कंपनी विच हैज़ पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड 10% ऑफ द डिपॉजिट मैच्योरिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर. स्टूडेंट्स, जो कंपनी है विच हैज़ पब्लिक डिपॉजिट रिक्वायर्ड, जो पब्लिक डिपॉजिट का जिसको नीड्स है टू सेट असाइड 10% ऑफ द डिपॉजिट, जितना डिपॉजिट होता है उसका 10% केप्ट असाइड, उसको अलग रख दिया जाता है. एंड द अमाउंट सो सेट असाइड कैन बी यूज्ड फॉर रीपेइंग पब्लिक डिपॉजिट, ताकि फ्यूचर में उसको आप रीपेंट कर सकें.